کہانی ایک ایسے خوبصورت گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے دامن میں سبز وادیوں کے درمیان بسا ہوا ہے۔ صبح کی روشنی جب درختوں کے پتوں پر پڑتی ہے تو وہ جیسے چمک اٹھتے ہیں۔ فضا میں پرندوں کی آوازیں اور دور کہیں بہتی ندی کی ہلکی سرسراہٹ اس دیس کو جنت کا ٹکڑا بناتی ہے۔ مگر اس خوبصورتی کے پردے کے پیچھے ایک سچ چھپا ہے: غربت، خاموشی اور مسلسل جدوجہد۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک جھونپڑی ہے جہاں رہتا ہے رمضان، ایک محنتی مگر بے حد غریب لکڑہارا۔ اس کی ساری زندگی کلہاڑی، پسینہ اور فکر میں گزر رہی ہے۔ دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، شہر میں بیچتا اور اس کمائی سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ مگر اب جنگل بھی خاموش ہونے لگا ہے، درخت کم ہو چکے ہیں اور لکڑیاں ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں، بیوی کی آنکھوں میں فکر ہے، بچوں کے چہرے پر معصوم بھوک۔ رمضان، کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، ہانڈی میں کچھ ڈالنے کو کچھ بھی نہیں، اور بچوں نے 2 وقت سے کچھ نہیں کھایا۔ کیا بتاؤں زلیخا، روز صبح نکلتا ہوں، کلہاڑی کندھے پہ رکھ کے امید لے کر جنگل جاتا ہوں، پر لکڑیاں جیسے غائب ہو گئی ہوں، کچھ ملتی ہی نہیں۔ پر کب تک رمضان؟ کب تک خالی تھیلا لیے واپس آتے رہو گے؟ اب تو ہاتھ خالی ہی نہیں، دل بھی خالی ہوتا جا رہا ہے۔ دل خالی ہونے نہیں دیتا، بس ہر دن نئی دعا لے کر نکلتا ہوں، پر درختوں نے بھی جیسے منہ موڑ لیا ہو، کمزور، سوکھے اور کٹنے کے قابل بھی نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صرف ہوا کھا کے گزارا کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ فاقے ہماری تقدیر بن جائیں۔ فاقے؟ وہ تو جیسے ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں زلیخا، بس ہم دروازہ کھولنے سے ڈر رہے ہیں۔ بچے رمضان، ان کی آنکھیں دیکھو کتنی خالی سی ہو گئی ہیں۔ سچ کہوں، رات بھر میں سوچتی رہی کہ شہر کا رخ کریں، شاید وہاں کچھ مزدوری، کوئی کام، کوئی امید۔ شہر؟ وہاں تو ہمارے لیے نہ رستہ ہے، نہ چھت، نہ پہچان، اور ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں بھٹکیں گے ہم؟ اگر بیمار ہو گئے تو کون دیکھے گا؟ تو کیا یہاں بیٹھ کر ختم ہو جائیں؟ صرف امید پر بھوک کب تک سہے گی رمضان؟ اب تو دل ہارنے لگا ہے۔ مت ہارو زلیخا، بس ایک بار اور نکلتا ہوں کل، شاید رب کی رحمت برس جائے، شاید کوئی ایسا درخت مل جائے جو ہماری سانسوں کا سہارا بن جائے۔ رب ہی ہے اب۔ سب بھکا وقتا ہے، ہلکی ہلکی دھوپ جنگل کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی ہے۔ رمضان کلہاڑی کندھے پر ڈالے تھکے قدموں کے ساتھ جنگل میں چل رہا ہے، درختوں کو غور سے دیکھتا ہے، لیکن ہر طرف فکٹے ہوئے تنے اور سوکھے ٹہنیاں۔ وہاں ایک درخت کی طرف بڑھتا ہے، جوا سے بچا ہوا لگتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھتا ہے کہا اس کی لکڑیاں بھی کسی نے پہلے ہی کاٹ کر لے جا چکی ہیں۔ وہ بے بسی سے ارد گرد دیکھتا ہے، پھر تھک کر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ، اب اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ یہ جو ایک درخت کل نظر آیا تھا، میں نے سوچا تھا صبح آ کر کاٹ لوں گا، بس اسی سے آج کی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا، پر یہ بھی کسی اور کے ہاتھ لگ گیا۔ اب انہیں لے کر جاؤں گا اب زلیخا کے سامنے، کیسے دیکھوں بچوں کی آنکھوں میں؟ کل بھی خالی ہاتھ لوٹا تھا، آج بھی ہاتھ خالی ہیں، اور دل میں خالی پن سے زیادہ کچھ نہیں۔ چولہا ٹھنڈا ہے، ہانڈی خالی ہے، اور امید بھی جیسے مرنے لگی ہے۔ کتنے دن اور گزاریں ہم بھوکے؟ اب تک یا اللہ، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو ہی کوئی رستہ نکال، کچھ کر، کچھ دکھا۔ اچانک ایک بزرگ آدمی رمضان کو پریشان دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ بیٹا، تم یہاں اس سنسان جنگل میں اتنے پریشان بیٹھے ہو، سب خیر تو ہے؟ ایسا کیا دکھ ہے جو تمہارے چہرے سے تھم نہیں رہا؟ بابا جی، خیر کہاں ہے؟
जिंदगी जैसे बोझ बन गई है। लकड़ियां काट कर घर का चूल्हा जलाता था, अब वो लकड़ियां ही नहीं मिलते। जंगल खाली हो चुका है और मेरा दामन भी। तो फिर क्या इरादा है बेटा? यूं ही बैठे रहोगे? हार मान लोगे? पता नहीं, अब कुछ सुझाई नहीं देता। बीवी का चेहरा आंखों में आता है तो दिल होलता है, बच्चों की भूख वो नजर आती है तो आंखें भर आती है। मैं उन्हें खाली हाथ कब तक देखता रहूं? आज भी कुछ नहीं मिला और अब तो लगता है कल भी कुछ ना होगा। देखो बेटा, रब कभी अपने बंदों को भूलता नहीं। तुम नेक नियत हो, मेहनती हो, सब्र करने वाले हो। ये आजमाइश है और आजमाइश के बाद ही रब अपनी रहमत उतारता है। हौसला रखो, दरवाजे बंद हों तो आसमान खिलता है। बाबा जी, क्या वाकई क्या रब मुझे भी देख रहा है? क्या वो मेरी मेहनत, मेरी फरियाद सुन रहा है? रब दिलों के हाल जानता है बेटा। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा पसीना, सब उसकी नजर में है। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही रोशनी आती है। तुम बस हार ना मानो, बहुत जल्द तुम्हारे दिन बदलेंगे। आमीन। या अल्लाह, ताब ही सुन ले। बुजुर्ग की बातों से रमजान के चेहरे पर कुछ नरमी आती है। वो खामोश होकर जमीन की तरफ देखने लगता है। बुजुर्ग अपनी लाठी जमीन पर टिकते हुए कुछ देर तक उसे गौर से देखते हैं, फिर आहिस्तगी से अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ थैला निकालते हैं। बेटा, ये थैला लो। इसे अभी मत खोलना, बस घर जाकर खामोशी से अपनी बीवी के हाथ में दे देना। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, इसके लिए रास्ते पैदा हो जाते हैं। बाबा जी, ये क्या है? क्या है इसमें? बस दुआ है और नसीब। और हाँ, जिस दिन तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए, किसी दूसरे परेशान दिल को जरूर याद रखना। बाबा जी, अब जैसे लोग शायद फरिश्ते होते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। अल्लाह तुम्हारा हाफिज बेटा। सूरज ढल चुका है। रमजान थके कदमों के साथ घर में दाखिल होता है। जलीखा दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है और जैसे दिल ही दिल में कुछ समझ जाती है। रमजान खामोशी से थैला जलीखा के हाथ में देता है। जलीखा हैरत से उसे देखती है। ये क्या है रमजान? कहाँ से लाए हो? तुम तो खाली हाथ गए थे, ये थैला किसका है? मुझे जंगल में एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने दिया है। कहा कुछ मत पूछना, बस उसे खोल लो। अल्लाह, ये तो सुना है। ये सके, ये पर्ची क्या कह रही है? रमजान वाकई किसी बुजुर्ग ने दिया है। जुलेखा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। अल्लाह ने शायद हमारी फरियाद सुन ली है। हमारी दुआएं रंग ला गई हैं रमजान। अल्लाह ने हमें इस वक्त याद रखा जब हम खुद भी टूटने लगे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यूं सब कुछ बदल जाएगा। मैं सजदा शुक्र बजा लाऊंगा, यही मेरा पहला काम होगा। रात का वक्त है। रमजान और जलीखा घर के कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। थैला एक तरफ रखा है जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक ना कुछ खाया है ना थैला को हाथ लगाया है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जी भाई, अब कौन है? इतनी गर्मी में खैरियत तो है? अस्सलाम अलैकुम भाई, मैं मुसाफिर हूं। कई मील पैदल चल कर आया हूं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दें। मैं बहुत भूखा हूं। बस एक नवाला भी मिल जाए तो शुक्र अदा करूंगा। चेहरे पर परेशानी और दुख के आसार। वालेकुम अस्सलाम। भाई, दिल तो बहुत करता है आपकी मदद करने को, मगर सच कहूं तो हम खुद भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अभी जंगल से खाली हाथ वापस आया हूं। लकड़ियां भी कोई और काट कर ले गया। घर में बच्चे और बीवी सब खाली पेट है। गरीब आदमी आंखों में आंसू लिए
भाई, जो भी हो अल्लाह के वास्ते दे दो। एक सूखी रोटी, एक नवाला, कुछ भी, बस खाली हाथ मत लौटा। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। गहरी सांस लेता है और चंद लम्हे सोचकर, ठहरो भाई, तुम्हारे लहजे में सच्चाई है। मैं अभी अंदर जाकर कुछ देखता हूं। हो सकता है अल्लाह कोई वसीला बना दे। दुआओं में याद रखना, हमें भी बहुत जरूरत है। जुलेखा। बाहर दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। कहता है कि 2 दिन से भूखा है। अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मांग रहा है। ओ, तो क्या तुमने इसे कुछ दिया? क्या दूं जुलेखा? हमारे पास खुद किया है। आज भी खाली हाथ वापस आया हूं। न लकड़ियां ला सका, न कुछ कमा सका। किचन में भी कुछ नहीं है। तुम ही बताओ क्या दूं इसे? रमजान, वो भी हमारी तरह भूखा है। जिस तरह हमने कल का दिन फाके में गुजारा, शायद वो भी कई दिनों से कुछ न खाया हो। हमें भी तो अल्लाह ने इस बुजुर्ग के जरिए मदद दी थी। क्या तुम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था? नहीं जुलेखा, मैं नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि जब अल्लाह तुम्हें दे तो तुम दूसरों की मदद करो। शायद यही हमारा पहला इम्तिहान है। बस तो फिर देर किस बात की? जाओ, वो छोटा सा सोने का सिक्का जो बुजुर्ग ने दिया था, वही दे दो इस गरीब को। अगर हम इसे खाली हाथ भेजेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि वो नाराज हो जिसने हमें उम्मीद दी। ठीक है जुलेखा, तुम सच कहती हो। अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है, अब हमें ही वो वसीला बनना होगा। रमजान आहिस्ता आहिस्ता अंदर से निकलकर दरवाजे की तरफ आता है। गरीब आदमी अभी तक वहीं खड़ा है, निगाहें झुकी हुई हैं और चेहरे पर भूख और थकन के आसार नुमायां हैं। भाई, ये लो। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, लेकिन ये सोने का सिक्का है। मेरे लिए भी बहुत कीमती है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए इस वक्त एक नवाले से बढ़कर हो। भाई, ये सुना है? आप मुझे ये दे रहे हैं? आप खुद भी तो मजबूर लग रहे थे, फिर भी ये दे रहे हैं? हाँ, मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आस्ताब मेरी दहलीज पर अल्लाह की तरफ से आया है। तेरे हाथ फैलाकर मांगने से पहले मुझे वो बुजुर्ग याद आ गए जिन्होंने कहा था कि जब अल्लाह दे तो बांटना सीखो। और शायद ये पहला मौका है मुझे सीखने का। अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा भाई, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। तुम जैसे लोग ही दुनिया का असल नूर हैं। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम शुक्रिया के साथ लौटो, और जब तुम्हारे पास हो तो तुम भी किसी के काम आना। आंखों में आंसू लिए, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए आज का दिन जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया है। जुलेखा, मैंने वही खाने का थोड़ा सा सामान और एक सोने का सिक्का इसे दे दिया। रमजान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। जिस तरह अल्लाह ने हमें किसी वसीले से नवाजा, हमें भी किसी के लिए वही वसीला बनना है। पता है, जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो लगा जैसे मेरा दिल हल गया हो। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी हम किसी के काम आ गए। ये एहसास अजीब सा सुकून दे रहा है। हमारे घर में चाहे कुछ कम हो, लेकिन दिल में अगर वसअत हो तो हर चीज पूरी लगती है। याद है बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा था कि जो मदद हमें मिली वो आगे पहुंचाना हमारा इम्तिहान होगा। शायद ये पहला कदम था इस तरफ। अल्लाह ने हमें इम्तिहान में डाला, और मेरे दिल को यकीन है कि आज तुमने जो किया वो इस इम्तिहान में कामयाबी का पहला निशान है। बाबा जी, आप
उस वक्त आइए ना, आइए अंदर तशरीफ लाइए। बेटा रमजान, आज तुम्हारा पहला इम्तिहान था और तुम रब के फजल से कामयाब हो गए। इम्तिहान? कौन सा इम्तिहान बाबा जी? वो भूखा जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था, वो रब की तरफ से भेजा गया तुम्हारा पहला इम्तिहान था। तुमने इसकी मदद की, अपना हिस्सा बांटा, दिल के ज़र्फ का सबूत दिया। लेकिन बाबा जी, हमारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी दिल ने गवारा न किया कि किसी को खाली लौटाएं। इसीलिए तो तुम कामयाब हो गए बेटा। ये दुनिया लेने वालों से भरी है, मगर देने वाले कम होते हैं। तुमने देकर रब को राजी किया है। बाबा जी, दिल में एक अजीब सी खुशी है, जैसे रब की तरफ से कुछ अता हुआ है जो लफ्जों में नहीं आता। ये रब की रजा की खुशबू है। जब बंदा अपने नफस पर काबू पा लेता है तो रब की रहमत इसके कदम चूमती है। क्या ये बस एक आजमाइश थी? अभी और भी होंगी बाबा जी। ये तो सिर्फ पहला जीना था। आगे और रास्ते हैं और रब हर कदम पर आजमाएगा। लेकिन तुमने पहला कदम सच्चाई और इसार के साथ उठाया, अब रब तुम्हारा हाथ थाम लेगा। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरा हर अमल रब की रजा के लिए हो, बस रब मेरे साथ रहे। अगर तुम इसी नियत पर कायम रहे तो रब कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो, रमजान इंसान के अमल ही इसकी हकीकत है, और तुम्हारी हकीकत तुम्हारे अमल ने जाहिर कर दी।